First of all, I welcome you all in Rege Dikshit Science Academy, and today we are going to learn a very important topic of organic chemistry called as compound containing nitrogen. In this particular topic, there is a very important segment called as amines, and today we are going to do a revision of this amine topic. As your board exam is just 1 month is left to give your board exam, so we already ready with your all reactions and mechanisms of amine topic, but there is a lot of confusion. So many reactions are there in organic chemistry. So always student used to ask me how to remember these reactions. When they ask a question like conversion or how will you prepare, then always we are in a dilemma कि exactly कौन सा reaction पूछा है. So to get the solution of that, we'll try to prepare one chart of amine topic. This is a recap, this is a revision. So we'll not will not discuss about all the reactions and its mechanism. Yeah, if any reaction, if you demand, okay sir, we need a reaction also, mechanism also, please raise your hand. We are ready to discuss the reaction mechanism also. But the today's target of making this video is just how to revise amine topic, how to remember these all reactions, what are the shortcuts. So let's start with the topic called as amines and its preparation and reaction. About nomenclature, I'll upload a separate video to understand, because the nomenclature of amine is a very important issue. So we'll upload a separate video for that. But right now in this video, we'll discuss the preparation and reactions of amines. Let us start with the preparation. As we know, the first method of preparation of amine is Hofmann's ammonolysis. In a Hofmann's ammonolysis, we know alkyl halide react with ammonia. You know na ammonia? Alkyl halide react with ammonia. It's a direct reaction with ammonia. When we say it's a direct reaction with ammonia, we use generally alcoholic type of ammonia, and we already know that it gives you a mixture. It gives you a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. This reaction, it's very difficult to control this reaction at only primary stage. It always gives you a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine as well as quaternary ammonium salt. We had already discussed this reaction when we learned this topic amine. Now what type of MCQ question they may ask you based on this particular topic, based on this particular reaction. We know that alkyl halide react with ammonia and excess of alkyl halide. If I go on adding excess of alkyl halide, then definitely the major product will be quaternary ammonium salt. If I go on adding alkyl halide in excess, that means if I take an example, say for example, methyl bromide is reacting with ammonia. What will happen? Just a short recap of this reaction. What will happen? We know that one hydrogen react with Br to give you HBr, and you get a compound called as methyl amine. If further methyl bromide reacts, one more hydrogen of amine get replaced by CH3 and you get a compound called as CH3 NHCH3 called as dimethylamine. Further, one more time when methyl bromide reacts, this one more H react with Br to give you HBr, and one more hydrogen of ammonia get replaced by methyl to get a compound called as trimethylamine. This is a tertiary type of amine. That's why we say that you get a mixture of primary amine, secondary amine as well as tertiary amine. But we know that one more time methyl bromide reacts. Here they may ask you the question, how one more time methyl bromide reacts with tertiary amine? We know that it gives you quaternary ammonium salt. The main concept behind that, when you break this carbon bromine bond, electron pair, who is more electronegative? Bromine. Since bromine is more electronegative, bromine will take that pair of electron and bromine will become Br minus. Carbon will become carbocation. And carbocation now require one pair of electron. And hence this nitrogen, as we know, nitrogen contain one lone pair of electron. So nitrogen will donate that lone pair of electron to this carbocation and chautha alkyl group be joined hoga. That type of bond is called as dative bond, coordinate bond, and with the coordinate bond चौथा अल्काइल ग्रुप भी नाइट्रोजन को ज्वाइंट होगा टू गेट अ कंपाउंड CH3,4N. N ने अपना लोन पेयर उधर दिया है, so by giving electron nitrogen will become positive and that positive charge ion
will attract that negative charge Br minus, and this is how you get a compound called as tetramethyl ammonium bromide. काय पडला माणूस? Tetramethyl ammonium bromide. Such type of compounds are called as quaternary ammonium salt, जिसमें you will find all types of bonds are there. जो पहले 3 मिथाइल जॉइंट थे, they all are bonded to nitrogen by covalent bond. That bond is covalent. जो चौथा अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट हुआ, जहां नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, that bond is coordinate bond. And that nitrogen, because of that donation of lone pair of electron, nitrogen become positive ion, Br is negative ion, so there is a force of attraction. That type of bond is called as ionic bond. So in this quaternary ammonium salt, you will find a covalent bond, coordinate bond, as well as ionic bond. Now what type of MCQ question? See, इसमें if you add more number of alkyl halide, अगर मैंने alkyl halide ज्यादा डाला, बदा बदा अल्काइल हैलाइड डाला, इफ आई ऐड अल्काइल हैलाइड बदा बदा, व्हाट विल हैपन रे? क्योंकि मैं ज्यादा अल्काइल हैलाइड डाल रहा हूं, वो अल्काइल हैलाइड आगे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते जाएगा, मुझे प्राइमरी अमाइन मिलेगा और अल्काइल हैलाइड है, वो H को रिप्लेस करेगा, सेकेंडरी मिलेगा और अल्काइल हैलाइड मेरे कंटेनर में पड़ा है, इट विल गिव टर्शरी और अल्काइल हैलाइड पड़ा है, तो डेफिनेटली योर मेजर प्रोडक्ट विल बी, मतलब मैक्सिमम कंटेंट में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. लेकिन रिवर्स वे से सोच के देखो ना, अगर मैंने अल्काइल हैलाइड कम डाला और उसके कंपैरिजन में अमोनिया बहुत ज्यादा डाला, इफ आई ऐड अमोनिया इन एक्सेस, देन जब पहला स्टेप का रिएक्शन होगा, यू विल गेट अ प्राइमरी अमाइन. दो डेफिनेटली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट तक जाएंगे, सो एवरी टाइम यू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. बट ज्यादा कंटेंट में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा अमोनिया बहुत ज्यादा है और अल्काइल हैलाइड उसके कंपैरिजन में बहुत ही, तो शायद पहले 2 स्टेप में ही अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, सिंस द क्वांटिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज लेस. इन दैट केस, इन अ मिक्सचर ओनली, द मेजर प्रोडक्ट विल बी primary amine. So sometime now they ask the question MCQ in that way, if ethyl bromide, listen carefully, if ethyl chloride, say if ethyl chloride react with excess of ammonia, what will be the dominant product? Say when they are using the word ammonia is in excess, इसका मतलब मेरा alkyl halide कम पड़ रहा है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट, दो आई विल गेट अ मिक्सचर, बट फिर भी उसमें मेजर प्रोडक्ट किसका रहेगा? प्राइमरी अमाइन का. सो योर मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल अमाइन. वो अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा? इथाइल. सो योर मेजर प्रोडक्ट इज व्हाट? इथाइल अमाइन. लेकिन वही क्वेश्चन अगर ऐसा आया, इफ एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया, अब मेरा इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस है, मतलब वो आगे रिएक्ट करते जाएगा रिएक्ट करते जाएगा. सो मेरे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का प्रोडक्ट में प्रमाण ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा? रादर देन सेइंग क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, सोचो ना मेरे चारों अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे? इथाइल. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट? अगर 4 इथाइल उसमें रहेंगे तो द नेम ऑफ दैट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट विल बी टेट्रा इथाइल अमोनियम, सिंस द हैलोजन इज क्लोरीन, सो द कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड. सी व्हाई टू से क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट? अगर एमसीक्यू में स्पेसिफिक नाम दिया है तो यूज दैट नेम ना. अपने को मालूम है अल्काइल ग्रुप कौन सा? इथाइल. समझो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सेस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, what is the question? Excess of methyl bromide react with ammonia, then I know if alkyl halide is in excess, the dominant product is quaternary ammonium salt. मेरा alkyl group कौन सा है? मिथाइल है. so what is the dominant product? tetramethyl ammonium chloride. क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड. लेकिन वही मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, डोमिनेंट प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन, and primary amine alkyl group कौन सा है? मिथाइल. so the dominant product is methyl amine. so in short, in this first reaction called as Hoffman's ammonolysis, याद क्या रखना है? alkyl halide react with ammonia always gives you mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. In a quaternary ammonium salt we observe all types of bonds like covalent bond, coordinate bond, ionic bond. If excess of ammonia is used in the reaction, the dominant product is primary amine.
If excess of alkyl halide is used, then the dominant product is quaternary ammonium salt. Let's move on to the second reaction. Second reaction of preparation of amine. Amine बनाने का जो दूसरा तरीका है, that reaction is alkyl halide react with potassium cyanide. ये रिएक्शन बेसिकली अमाइन टॉपिक में नहीं दिया है, बट फिर भी हम लोग ये रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि जनरली अपने बोर्ड एग्जाम में शायद अल्काइल हैलाइड से अमाइन तक जाने को बोल सकते हैं. इफ दे आस्क यू टू प्रिपेयर अमाइन बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड, दिस वन ऑफ द वे. व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वन ऑफ द वे, यू विल कम टू नो लेटर ऑन. पहले आपको ये एचडीए में दिया हुआ रिएक्शन, हेलो अल्केन्स में दिया हुआ रिएक्शन यूज करना है. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम cyanide. It's a normal nucleophilic substitution reaction where potassium being a metal, metals are electropositive. So K plus react with X minus to give you minus KX. Potassium halide चला गया and then halogen गया, cyanide आया. This is what I mean by substitution. एक गया दूसरा आया. Interesting है ना ताई? Halogen गया, cyanide आया, and I'll get a compound called as alkyl cyanide. भले एक्चुअली वी आर रिवाइजिंग अ टॉपिक कॉल्ड एज अमाइन, लेकिन मेरा ये मानना है अब 1 महीने पे अपना बोर्ड एग्जाम है तो आपको ना अलग अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना चार्ट बनाने पड़ेंगे और उस चार्ट के जरिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उस कंपाउंड का मैं क्या क्या करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा. ऐसे गलत चार्ट बन के तय पढ़ना पड़ेगा कि उस कंपाउंड का मैं क्या क्या करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा. जैसे एक साइनाइड का एग्जांपल लेते हैं कि साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर. सबसे पहले तो अपना अमाइन कैसे बनेगा. एज वी नो साइनाइड का हमें करना पड़ता है रिडक्शन. साइनाइड आफ्टर रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन. क्या बोला आदमी? साइनाइड आफ्टर रिडक्शन गिव. इसका रिडक्शन करो ना 4 नेसर नाइट्रोजन के साथ. वी नो रिड्यूसिंग एजेंट सच एज LiAlH4 यूज करो. It's a reducing agent. Yeah, even you can use sodium plus ethyl alcohol. दारू है ना, sodium plus ethyl alcohol. It's a very good reducing agent. Reaction क्या होगा? ये दोनों pi bond चले जाएंगे. Out of 4 hydrogen, 2 will join to carbon, 2 will join to nitrogen, and the product is RCH2 NH2, which is nothing but our primary amine. So cyanide after reduction give primary amine. सिर्फ इसमें एक बात मैंने बताई थी टॉपिक पढ़ाते समय, अगर आपको याद है तो, if you are using sodium plus ethyl alcohol as a reducing agent and if you are doing the reduction of cyanide, then this particular reduction is called as Mendius reduction. अपने को ना कुछ कुछ reactions के नाम याद रखने पड़ेंगे MCQ point of view also. So this particular reduction is called as Mendius reduction and cyanide gets converted into प्राइमरी अमाइन. लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे इस पूरे पाथ को, तो जब साइनाइड आएगा उस हैलोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो साइनाइड ग्रुप के अंदर भी एक कार्बन ऑलरेडी है ना. तो जब साइनाइड आएगा वो अपने साथ एक कार्बन लेके आएगा. तो जितने भी कार्बन वाला आपका अल्काइल हैलाइड होगा उसके कंपैरिजन में आपके अमाइन में एक कार्बन ज्यादा होगा क्योंकि साइनाइड अपने साथ एक कार्बन लेके आया. सोच के देखो ना, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. समझो इफ आई स्टार्ट विद इथाइल ब्रोमाइड. अगर बच्चों मैंने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया है, मैंने इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड. व्हाट विल हैपन? फटाफट करते हैं. ब्रोमीन की जगह पे कौन आ जाएगा? साइनाइड. साइनाइड आएगा तो उस कंपाउंड में कितने कार्बन हो जाएंगे? 3, क्योंकि साइनाइड अपने साथ एक कार्बन लेके आया. इफ आई डू द रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड देन ये 2 पाई बॉन्ड चले जाएंगे. 2 हाइड्रोजन कार्बन को 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलने वाले अमाइन का नाम क्या होगा? प्रोपाइल अमाइन. आई स्टार्टेड विथ इथाइल ब्रोमाइड, आई गॉट प्रोपाइल अमाइन. सो एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज हैविंग 1 कार्बन एक्स्ट्रा, क्योंकि साइनाइड आएगा तो अपने साथ एक कार्बन. तो ये बात याद रखनी है कि कभी भी जिंदगी में कभी भी अगर एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन बोला जाए बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड तो अपने को पाथ याद आना चाहिए. अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू कन्वर्ट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड टू एन ब्यूटाइल अमाइन, सवाल क्या है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड टू एन
कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, अरे ऐसा कैसा है, एक कार्बन कैसा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना जब उस एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ होगा, तो ब्रोमीन की जगह पे आएगा साइनाइड, साइनाइड अपने साथ एक कार्बन लेके आएगा, फिर उसका रिडक्शन मुझे क्या देगा? अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन मोर, क्योंकि साइनाइड ने एक कार्बन लाया है। आर यू गेटिंग इट? सो ये पाथ याद रखने का। उसी तरीके से साइनाइड का और क्या क्या करोगे तो क्या क्या मिलेगा? साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो अमाइन मिलेगा। कम ऑन स्पीक विथ मी। साइनाइड का रिडक्शन क्या देगा? अमाइन। साइनाइड आफ्टर रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन। लेकिन उसी साइनाइड का अगर मैं एक स्पेशल रिडक्शन करता हूं, हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में पढ़ा था, कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन का अपना खुद का रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक SnCl2 plus HCl. If I use this reducing agent, if I do the Stefan's reduction, only 2 hydrogen will get added. एक pi bond break होगा, one will join to C, one will join to N, and the product I will get is R, CH, double bond, NH. Such a compounds are called as imines. इस इमाइन में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, इमाइन का हाइड्रोलिसिस विल गिव मी एल्डिहाइड। हम लोग पढ़ा था ये 2 हाइड्रोजन इस NH के साथ देंगे अमोनिया। यू नो ना अमोनिया, वो अमोनिया बेसिक होता है ना, इसलिए वो HCl के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा NH4Cl. सो एक्चुअली यू विल गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और जैसे ये पूरा अमोनियम क्लोराइड में चला जाएगा, नाउ दिस कार्बन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ O and I will get R C double bond OH, which is nothing but, so this is a path. देखो ऑर्गेनिक में अगर रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं करना है ना, तो अपने को पाथ याद रखना पड़ेगा कि साइनाइड का रिडक्शन करता हूं बाय यूजिंग LiLH4 और सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, मेंडियस रिडक्शन, तो साइनाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन। लेकिन उसी साइनाइड का if I do the Stefan's reduction by using SnCl2 plus HCl, then I will get imine. Imine on hydrolysis give aldehyde. लेकिन उसी साइनाइड का अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करता हूं, शाबाश, इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करूंगा, अगर आपको याद है इन 4 हाइड्रोजन में से 2 पानी यूज किए तो 4 हाइड्रोजन है, उन 4 में से 3 इस एन को लेके जाएंगे। हम लोग ने पढ़ा भी था 4 में से क्या देता है? अमोनिया। अगेन वो HCl के साथ NH4Cl देगा, तो N चला जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को बना देंगे C डबल बॉन्ड O OH, इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक। तो अगर बच्चों हम लोग ने ऐसा चार्ट बनाना चालू किया कि साइनाइड आफ्टर रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन, साइनाइड आफ्टर स्टीफन्स रिडक्शन गिव इमाइन, imine after hydrolysis give aldehyde, cyanide itself on hydrolysis give carboxylic acid, और इन तीनों में अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में एक कार्बन ज्यादा होगा। अब देखो ना, अगर मुझे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपियोनिक एसिड, फटाफट चार्ट दिमाग में आना चाहिए। इथाइल ब्रोमाइड टू एक कार्बन ज्यादा है, प्रोसेस क्या रहेगा बोलो? इथाइल ब्रोमाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल साइनाइड। अब साइनाइड आया, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो उसका क्या करने का? हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड डायरेक्टली ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वही सवाल आया इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपियोनल्डिहाइड, अगेन एक कार्बन ज्यादा वाला अल्डिहाइड चाहिए, लेकिन इस बार प्रोसेस क्या है बताओ? इथाइल ब्रोमाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल साइनाइड। लेकिन इस बार साइनाइड का क्या करोगे? स्टीफन्स रिडक्शन विच विल गिव इमाइन, इमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अल्डिहाइड। अरे करते हैं, लेकिन वही साइनाइड से अगर मुझे प्राइमरी अमाइन बनाने को बोला तो साइनाइड का क्या करने का? मेंडियस रिडक्शन। तो ऐसा याद रखने का, साइनाइड मेंडियस रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल विल गिव प्राइमरी अमाइन। साइनाइड आफ्टर Stefan's reduction, reducing agent SnCl2 plus HCl will give imine. Imine after hydrolysis will give aldehyde. Cyanide itself after hydrolysis give carboxylic acid. चार्ट समझा है? लेकिन बच्चों इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो साइनाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन, बट कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड उस अमाइन में एक कार्बन ज्यादा होगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा आया तो how will you convert
ethyl bromide to ethylamine. Ethyl bromide to what the thing which we are understanding over here? I have to prepare amine containing same number of carbon. अब मैं पोटेशियम साइनाइड उसमें ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड ऐड किया तो साइनाइड आएगा, साइनाइड आएगा तो अपने साथ एक कार्बन लेके आएगा, ऑलवेज यू विल गेट अमाइन कंटेनिंग वन कार्बन एक्स्ट्रा. तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन चाहिए तो प्रोसीजर क्या है? नहीं, हॉफमैन अमोनोलिसिस है, ताई ने बोला वैसे हॉफमैन अमोनोलिसिस, बट इट विल नॉट गिव यू ओनली इथाइल अमाइन, as it will give you a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. So this is not much preferable reaction. In this case, the more preferable, if you have heard about reaction called as Gabriel-Thalamide reaction. 3 स्टेप का रिएक्शन था, हम लोग ने पढ़ा था. गैब्रियल थैलिमाइड, शुरुआत थैलिमाइड से होती थी. थैलिमाइड का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग, यू नो ना बेंजीन, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH. थैलिमाइड का ऐसा स्ट्रक्चर ही था, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH. उस थैलिमाइड का रिएक्शन मैं आपको फटाफट वो 3 स्टेप रिवाइज करता हूं. थैलिमाइड था बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH. थैलिमाइड का रिएक्शन हम लोग करते थे पहले में KOH के साथ. इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां ये H और OH शादी करके जाएगा पानी में, एंड H की जगह पे आएगा K. दिस विल गिव यू आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड यू गेट अ कंपाउंड कॉल्ड एज बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O N minus K plus. This is how you will get potassium salt of thaliamide. इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड डालते थे. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस रिएक्शन फास्ट सो दैट आपको कौन सा रिएक्शन कब यूज करना है वो आइडेंटिफाई हो. पोटेशियम थैलिमाइड में वी ऐड अल्काइल हैलाइड. क्या रिएक्शन होगा? वो KX एंड K की जगह पे ये R कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा इस N के साथ, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O N को जॉइंट हो जाएगा R. अगर आपको याद है R का पोजीशन while giving name to this compound, that alkyl group का position is indicated by capital N and name you can write N alkyl thaliamide. मतलब thaliamide के N को alkyl group is directly attached, so the name of this compound will become N alkyl thaliamide. और इसका रिएक्शन हम twice NaOH के साथ करते थे. तो ये जो 2H है इधर का बॉन्ड ब्रेक करके इस N को बनाते थे R NH2. शॉर्टकट में रिएक्शन रिवाइज किया, बट व्हेन टू यूज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन. ये रिएक्शन यूज कब करना है? जब whenever they will ask you to convert alkyl halide into amine containing same number of carbon, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन चाहिए ना, तो हम लोग ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे. सो अल्काइल हैलाइड से ही अमाइन तक जाने का और एक रास्ता है, शॉर्टकट में लिखता हूं GPR. व्हाट इज दैट? गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन. और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से यू विल गेट अ प्राइमरी अमाइन बट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. मतलब देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको 3 रिएक्शन याद दिलाए. ये रिएक्शन सेपरेटली हम लोग ने जब अमाइन पढ़ा था तब किए ही थे. अभी हम सब रिवाइज कर रहे हैं अमाइन टॉपिक का, एक रिकैप कर रहे हैं. तीनों जो पहले प्रिपरेशंस है, ऑल दीज 3 प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन, यू कैन नोटिस देयर रिएक्टेंट इज अल्काइल हैलाइड. मतलब अब से अगर मुझे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो मैं याद ऐसा रखते जाऊंगा कि अल्काइल हैलाइड से अमाइन तक जाने के टोटल 3 रास्ते हैं. नंबर 1, Hoffman's ammonolysis. It's a direct reaction with alcoholic ammonia, but it always gives you mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. Second रास्ता था alkyl halide react with potassium cyanide. Halogen get replaced by cyanide. You get alkyl cyanide. That on Mende's reduction gives अमाइन. बट इस रास्ते को फॉलो कब करोगे? जब वो अमाइन पूछेंगे एक कार्बन ज्यादा वाला. लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन पूछा तो विल फॉलो द रिएक्शन कॉल्ड एज गैब्रियल
थैलिमाइड रिएक्शन। अमाइन बनाने के और क्या क्या रास्ते हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। अमाइन बनाने के ना मेजॉरिटी प्रिपरेशन रिडक्शन मेथड से जुड़े हुए हैं। देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। कंसेप्ट ऐसा है कि इफ आई डू द रिडक्शन ऑफ aldoxime, I get a primary amine. Aldoxime after reduction give primary amine, whereas ketoxime after reduction give secondary. You are absolutely wrong बच्चों, primary amine only. Aldoxime भी primary amine ही देता है और ketoxime भी primary amine ही देता है। सिर्फ फर्क इतना है, aldoxime after reduction give such a primary amine where NH2 is attached to terminal carbon atom. Aldoxime give such a primary amine where NH2 group is attached to last वाला carbon atom, terminal carbon atom. और ketoxime NH2 ही देगा। देखो NH2 दे रहा है मतलब that amine is primary, secondary नहीं होता। secondary का तो functional group NH है, NH2 दे रहा है मतलब वो प्राइमरी है, लेकिन वो NH2 लास्ट में नहीं होगा, वो NH2 कहीं नॉन टर्मिनल कार्बन पे होगा। व्हाट आई मीन बाय दैट? और ये रिएक्शन भी ना आपको अभी आपको जब 12 का पढ़ाई कर रहे हो आप, किसी एक टॉपिक पे ही नजर नहीं रखने का। वो कोई भी एक कन्वर्जन ना, आपको 2 या 3 टॉपिक के रिएक्शन मिलके आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में कि एक आध अमाइन बनाओ, अमाइन टॉपिक में ना ये रिएक्शन अल्डोक्साइम कीटोक्साइम से दिया, लेकिन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें देयर इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन जो अल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्डोक्साइम कीटोक्साइम में, फिर उसका रिडक्शन देगा अमाइन। तो आपको ये दोनों टॉपिक के रिएक्शन कंबाइन क्वेश्चन आ सकता है। मतलब दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर अमाइन बाय यूजिंग अल्डिहाइड कीटोन, बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड। मैं रिएक्शन फटाक से याद दिलाता हूं। एक आध अल्डिहाइड लेते ही अपन, चलो एक आध अल्डिहाइड लेते हैं, प्रोपियोनल्डिहाइड। Let's talk about propionaldehyde. What is the structure of propionaldehyde? बोलो रे, CH3 CH2 तीसरा कार्बन C डबल बॉन्ड OH टर्मिनल एंड। प्रोपियोनल्डिहाइड 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है। एक रिएक्शन इसका कंडेंसेशन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, अल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में है। इफ आई डू द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन? बोलो, NH2OH। हाइड्रोक्सिल से याद आएगा OH, अमाइन से याद आएगा NH2। इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रोपियोनल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH2OH, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, कंडेंसेशन होगा। दीज 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ O टू गिव यू रिमोल ऑफ वाटर। और जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा ना, अब दिस टर्मिनल वाला कार्बन, दिस CH विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ NOH। NOH is a functional group of oxime. This is how you'll get aldoxime. क्या प्रोडक्ट रहेगा अल्डोक्साइम का? बोलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH। प्रोपियोनल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम है, सो कंपाउंड का नाम है प्रोपियोनल्डा। अल्डा, अल्डा बोला ना, अल्डा अपन प्रोपियोनल्डिहाइड बोलेंगे ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्डिहाइड? प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्डा, प्रोपियोनल्डा। अल्डा बोला ना, अल्डा के आगे लिख देने का ऑक्साइम। प्रोपियोनल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपियोनल्डिहाइड। ब्यूटीरल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम, ब्यूटीरल्डोक्साइम। वैलेरल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम, वैलेरल्डोक्साइम। एसिटल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम, एसिटल्डोक्साइम। किसी भी अल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम, अल्डोक्साइम। ये रिएक्शन आपको अल्डिहाइड कीटोन में था। फिर इसका अगर मैंने रिडक्शन किया, प्रोपियोनल्डिहाइड का तई अगर मैंने आगे रिडक्शन किया, लेट्स डू द रिडक्शन। 4 नेचर नाइट्रोजन गिवन बाय अपना फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। क्या रिएक्शन होगा बोलो फटाफट? अगर बैलेंसिंग फॉर्मेट में सीखना है तो वन ऑफ द हाइड्रोजन OH को लेके जाएगा पानी में, एक हाइड्रोजन OH को पानी में लेके गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बचे हुए 3 हाइड्रोजन में से एक C को ज्वाइन करेगा, CH को, एंड 2 N को। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3
CH2, CH2, NH2. What is the product? Tell me. CH3, CH2, CH को एक H इधर का ज्वाइंट हुआ to make it CH2, NH2. NH2 मिला मतलब वो प्राइमरी अमाइन है, बट यू कैन नोटिस इस प्राइमरी अमाइन का NH2 ग्रुप किधर है? टर्मिनल एंड पे। मिलने वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन 1 अमाइन, है ना? IUPAC name of this compound is propane 1 amine. I am getting that amine group at the terminal end. Why I am getting that amine group at the terminal end? Because my starting product is aldehyde and aldehyde group is also present at the. So अगर मेरा functional group terminal end पे है, उसी पे रिएक्शन हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट में मिलने वाला अमाइन भी किधर रहेगा? मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, aldoxime after reduction give primary amine where NH2 group is attached to terminal end. लेकिन वही अगर मैंने किसी कीटोन से शुरुआत की, चलो ब्यूटेन 2 लेते हैं, या दैट इज ब्यूटेनोन, इट्स अ कीटोन। चलो यही रिएक्शन कीटोन के लिए करके देखते हैं। ब्यूटेन 2 फर्स्ट रिएक्ट विथ NH2OH, कंडेंसेशन करते हैं, इट्स अ रिएक्शन विथ NH2OH। क्या रिएक्शन होगा बोलो? कंडेंसेशन पैटर्न, सेम रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? दीज 2 हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ दिस O, ये पानी में चला जाएगा, एंड यही कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो जाने के बाद यही कार्बन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ NOH। तो मिलने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्साइम CH3, C, CH2, CH3, एंड दिस कार्बन इज नाउ हैविंग डबल बॉन्ड विथ NOH। तो मुझे वो ऑक्साइम ग्रुप भी किधर मिला? नॉन टर्मिनल कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे। और इसका जब मैं रिडक्शन करूंगा बाय यूजिंग 4 नेसेंट हाइड्रोजन, क्या रिएक्शन होगा? आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 1 OH को पानी में लेके जाएगा, बचे हुए 3 में से एक इस C को ज्वाइन करेगा आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये C को ज्वाइन करेगा टू मेक इट CH, और बचे हुए 2 N को बना देंगे। अगेन व्हाट आई एम गेटिंग? NH2। NH2 मतलब वो प्राइमरी अमाइन ही है, वो सेकेंडरी अमाइन, लेकिन इसका प्राइमरी अमाइन अपने को नॉन टर्मिनल कार्बन पे मिल रहा है, टर्मिनल कार्बन पे मिल। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3, CH, NH2, CH2. What is the IUPAC name of this compound? What is the IUPAC name of this compound? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 4. So the name of this compound is butane 2-amine. Butane 2-amine. What is the IUPAC name? Butane 2-amine. Point to be noted बच्चों, अगर मुझे मेरा अमाइन ग्रुप टर्मिनल एंड पे चाहिए तो मुझे शुरुआत एल्डिहाइड से करनी चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी हमेशा कहां होता है? टर्मिनल एंड पे। उसका पहले करेंगे कंडेंसेशन विथ NH2OH to give you aldoxide, which on reduction give amine where you will get NH2 group at the terminal end. लेकिन वही अगर मुझे बोला गया कि NH2 मुझे किसी नॉन टर्मिनल कार्बन पे चाहिए, तो रियलाइज होना चाहिए मैं स्टार्टिंग एल्डिहाइड से नहीं करूंगा, तो मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा? कीटोन से। मतलब अगर वो लोग ने मुझे सवाल ऐसा आता है बोर्ड एग्जाम में, हाउ विल यू प्रिपेयर, प्रिंटेड क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर पेंटेन 1 अमाइन। सवाल क्या आया? पेंटेन by using carbonyl compound. See how they will ask you the question. How will you prepare pentane 1 amine by using carbonyl? मतलब क्या? Either aldehyde और, अब शुरुआत aldehyde से करूं या कीटोन से करूं? ये उस छापिल क्वेश्चन में दिया हुआ, तुझे दिमाग की बत्ती जलानी होगी। मेंटोस खा के नहीं जलेगी। मुझे NH2 ग्रुप किधर चाहिए? टर्मिनल एंड पे। तो शुरुआत में क्या लेना चाहिए? एल्डिहाइड। कितने कार्बन वाला? 5। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एल्डिहाइड? वैलर एल्डिहाइड। सो आई हैव टू स्टार्ट विद, इधर मुझे रियलाइज हुआ मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड वैलर एल्डिहाइड है, फिर उसका रिएक्शन करूंगा NH2OH, आई विल गेट वैलर एल्डोक्साइड व्हिच ऑन रिडक्शन विल गिव मी पेंटेन 1 अमाइन। लेकिन वहीं अगर उन्होंने बोला पेंटेन 2 अमाइन, मुझे पेंटेन 2 अमाइन मतलब NH2 ग्रुप किधर चाहिए? सेकेंड पे। तो मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं होगा, मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट
कीटोन होगा। कीटोन वो भी उसका कीटोन ग्रुप किधर होगा? सेकंड पे, क्योंकि मुझे अमाइन सेकंड पे चाहिए, मतलब मेरा रिएक्टेंट पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on will give pentane 2-amine, pentane 3-on, pentane 3-amine. Are you getting it? जहां मैं कीटोन लूंगा वही मुझे आगे क्या मिलेगा? अमाइन. सो फटाफट आंसर आएंगे, देखना, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-amine, pentane 2-on, pentane 2-amine, pentane 3-on, pentane 3-amine, valeraldehyde, pentane 1-amine. अल्डिहाइड बोला तो ऑलवेज यूर अमाइन किधर जाएगा? लास्ट में, मतलब फर्स्ट पे. अरे समझा? ब्यूटीरल्डिहाइड, ब्यूटेन 1-amine, प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपेन 1-amine. कंसेप्ट समझा है? तो अगर मुझे क्वेश्चन जब आता है हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेन 1-amine, असं बसायचं ना, ब्यूटेन 1-amine, काय करू? आएगा यार, ब्यूटेन 1-amine मतलब अमाइन किधर चाहिए? टर्मिनल पे. इसका मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है? अल्डिहाइड. कितने कार्बन वाला? शुरू कहां से करने का? ब्यूटीरल्डिहाइड. अरे कळतं है? लेकिन ब्यूटेन 2-amine के लिए ब्यूटेन 2-on, फिर उसका करने का कंडेंसेशन, मिलेगा अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम, विच आफ्टर रिडक्शन विल गिव यू अमाइन. कोई डाउट इस रिएक्शन में? मतलब इसको भी अपन थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं. अब we'll just try to prepare a chart so that remembering amine topic will become easy for us. शुरुआत में क्या यूज करेंगे? अगर if I use aldehyde, aldehyde का रिएक्शन किसके साथ बोलो? NH2OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. I'll get what? अल्डोक्साइम. क्या मिलेगा? इसका आगे क्या करने का? रिडक्शन. रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन यूज LiAlH4 which will give you प्राइमरी अमाइन. लेकिन अमाइन ग्रुप किधर रहेगा? टर्मिनल कार्बन. TC लिखता हूं, दैट इज टर्मिनल कार्बन. लेकिन वहीं अगर मैंने शुरुआत कीटोन से की, कीटोन रिएक्ट विथ NH2OH, क्या मिलेगा? कीटोक्साइम. कीटोक्साइम का रिडक्शन. इफ आई डू द रिडक्शन ऑफ कीटोक्साइम, व्हाट आई विल गेट? प्राइमरी अमाइन. उसको सेकेंडरी अमाइन नहीं बोलेगा. वो कौन है? प्राइमरी अमाइन ही है. विच विल गिव मी अमाइन ग्रुप एट द नॉन टर्मिनल कार्बन. एक एमसीक्यू, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ, आपसे सिर्फ शेयर करता हूं, इसी रिएक्शन से रिलेटेड है. उन्होंने ये बोला था कि there are compound A and B, there are two compounds A and B, they are functional isomers of each other. Compound A and compound B are functional isomers of each other, both separately treated with NH2OH to give C and D, which after reduction give E and F. Then which type of isomerism exhibit between E and F? क्वेश्चन वापस से सुनो. क्या क्वेश्चन था? देयर आर टू कंपाउंड्स, कंपाउंड ए एंड दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन. अल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों हमेशा फंक्शनल आइसोमर होते हैं क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप इच अलग है. दे बोथ सेपरेटली ट्रीटेड विथ NH2OH. तो जो अल्डिहाइड होगा वो देगा अल्डोक्साइम, जो कीटोन होगा वो देगा कीटोक्साइम. फर्दर ऑन रिडक्शन, aldoxime will give you primary amine, ketoxime will give you primary amine. So both functional group is now same, but aldoxime में वो NH2 किधर रहेगा? टर्मिनल पे. और कीटोक्साइम के रिडक्शन के बाद NH2 किधर रहेगा? नॉन टर्मिनल पे. मतलब उस NH2 ग्रुप का पोजीशन अलग होगा. So that E and F are position isomers of each other. Your reactants are functional isomers of each other. But after that product, functional group is same, but the position of the functional group differs. So E and F are position isomers of each other. Generally बच्चे यहाँ पे भी लिखते हैं functional isomer, क्योंकि उनको लगता है प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेगा. इन बोथ केस यू विल गेट प्राइमरी. और एक कंसेप्ट करते है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. हम लोग अमाइंस के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय यूजिंग अमाइड. सी बच्चों, मेरा मानना यह है कि आपको यह याद रखना है कि अमाइन कौन से कंपाउंड से अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से
कौन से रिएक्टेंट से बनेगा? वंस अगेन, अल्काइल हैलाइड से बनेगा। मेरे साथ रिवाइज करो, अल्काइल हैलाइड से बनेगा। अल्काइल हैलाइड से अमाइन तक जाने के देयर आर हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी रिएक्शंस आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक? 3. One is Hoffman ammonolysis, but there is a drawback of this reaction. It always gives you mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. Second way, अल्काइल हैलाइड से अगर मुझे सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन चाहिए तो आई विल राइट द रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड। लेकिन एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन चाहिए तो पाथ इज पोटेशियम साइनाइड, यू विल गेट अल्काइल साइनाइड व्हिच ऑन रिडक्शन विल गिव यू प्राइमरी अमाइन। और किससे बनेगा? अल्डिहाइड कीटोन से बनेगा। अल्डिहाइड कीटोन से बनाने का रास्ता, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद NH2OH, it will give you aldoxyme and ketoxyme which on reduction will give you amine. Aldoxyme will give you such amine where NH2 group is attached to terminal end. Ketoxyme will give such amine where NH2 group is attached to non-terminal end. Amine और किससे बनेगा? अमाइड से बनेगा। अमाइड से अमाइन तक जाने के भी दो रास्ते हैं। वन इज रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन करो ना बच्चों, इसका भी 4 नेचर नाइट्रोजन के साथ रिडक्शन, फेमस अपना LiLH4 या एनी रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन यूज। LiLH4 के साथ रिडक्शन करो, 2 हाइड्रोजन आउट ऑफ 4, इस O को लेके जाएंगे किधर? पानी में, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन इसी को बना देंगे CH2 and you will get a compound RCH2NH2. So I am getting what? Primary amine. Amide शब्द कसा है? Amide after reduction give amine. Number of carbon remain same, कोई भी number of carbon में change नहीं है। But इसका एक रिएक्शन अगर आपको याद है, Hoffman bromamide degradation reaction, happy birthday reaction है ना, it is HBD, happy birthday reaction. What is that happy birthday reaction? Hoffman bromamide degradation reaction. It's a direct reaction with bromine and alkali. अगर हम ब्रोमीन और अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगर आपको याद है उसमें मैंने पढ़ाया था कि ये C डबल बॉन्ड चला जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ Na2CO3, ये C डबल बॉन्ड Na2CO3 में चला जाएगा एंड डायरेक्टली NH2 अटैच हो जाएगा इस R को एंड यू विल गेट अ कंपाउंड कॉल्ड एज R। अगेन यू आर गेटिंग अमाइन, बट क्योंकि ये C डबल बॉन्ड Na2CO3 में चला जा रहा है, यू आर गेटिंग अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस, दैट्स व्हाई द नेम इज डिग्रेडेशन। नंबर ऑफ कार्बन कम हुए, डिग्रेड हुए, so the reaction is called as Hoffman bromamide degradation reaction. So फटाफट एग्जाम में ना कौन सा रिएक्शन पूछा है याद आना चाहिए। सवाल अगर पूछा जाता है प्रोपियोनामाइड, ऐकता है ना, प्रोपियोनामाइड टू प्रोपाइलमाइन, अरे बोला ना मी का फोटो काढायला उभा है, प्रोपियोनामाइड टू प्रोपाइलमाइन, रियलाइज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, तो कौन सा रिएक्शन करना है? रिडक्शन। लेकिन प्रोपियोनामाइड टू इथाइलमाइन, एक कार्बन कम हुआ मतलब कौन सा रिएक्शन है? हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पूछा है ये तो पहले रियलाइज होना चाहिए, बाकी ये रिएक्शन सेपरेटली हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े ही है, बट नाउ हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन पूछा है, ये क्लिक होता है क्या, उसका चार्ट करने का है। फटाफट देखो ना, अगर क्वेश्चन आता है इथाइल ब्रोमाइड, अगेन दिमाग में क्या आया? इट्स बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड वाले वो 3 रास्ते हैं, उनमें से कोई एक रिएक्शन होगा। सो इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अमाइन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कौन सा रिएक्शन है? गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इथाइल अमाइन इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है, अल्काइल हैलाइड से बनाना है, तो कौन सा रिएक्शन आएगा? गैब्रियल थैलिमाइड। लेकिन इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपाइल अमाइन, इथाइल ब्रोमाइड पोटॅशियम सायनाइड, इथाइल सायनाइड रिडक्शन, प्रोपाइलमाइन, असा पाथ क्लियर पाहिजे रे। प्रोपियोनामाइड, अमाइड बोल रहा है आदमी, प्रोपियोनामाइड टू प्रोपाइलमाइन रिडक्शन, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, बट प्रोपियोनामाइड टू इथाइलमाइन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन था बाय डायरेक्ट यूजिंग रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन. नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन भी अमाइन देता है. इफ आई डू द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, बट इसके लिए ना थोड़ा ज्यादा नेचर नाइट्रोजन हम लोग को लगता है. वो यूज 6 नेचर नाइट्रोजन, तो अपना रिड्यूसिंग एजेंट भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, लाइक SN प्लस HCl. तो अपन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 पानी, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन N को डायरेक्टली ज्वाइन करके देते हैं RNH2. बच्चों ये सारे अमाइन के प्रिपरेशन अपने बुक में दिए. याद रखने की प्रोसीजर, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शंस में जो कंफ्यूजन होता है वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है. बोल बोल के अवॉइड किया जा सकता है, चार्ट बना के अवॉइड किया जा सकता है. याद रखने का है कि अमाइन मेरे सिलेबस में, एक्चुअली अमाइन बनाने के ना और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने को अपना बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपन प्रिपरेशन राइट नाउ कर रहे हैं, तो अपने बोर्ड में जितने प्रिपरेशन दिए उतने ही कवर करने की कोशिश की है. अमाइन कौन से कंपाउंड से बनाया जा सकता है, मेरे साथ बोल के रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर होगा. वंस अगेन, कौन से कंपाउंड से बनेगा? अल्काइल हैलाइड. फटाफट रिवाइज करने का. अल्काइल हैलाइड डायरेक्ट अमोनोलिसिस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. अल्काइल हैलाइड से अमाइन हैविंग 1 कार्बन एक्स्ट्रा, इथाइल ब्रोमाइड प्रोपाइल अमाइन. क्या? अल्काइल हैलाइड, पोटेशियम साइनाइड, अल्काइल साइनाइड ऑन रिडक्शन अमाइन, ऑलवेज यू विल गेट 1 कार्बन एक्स्ट्रा बिकॉज साइनाइड अपने साथ 1 कार्बन लेके आ रहा है. लेकिन अल्काइल हैलाइड टू अमाइन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, इट इज गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन. फिर वो 3 स्टेप का रिएक्शन करके जाने का. ये हो गया अल्काइल हैलाइड से अमाइन आया, तो मेरे दिमाग में ये 3 रिएक्शन आने चाहिए. कार्बोनिल कंपाउंड से अमाइन आया. कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन. तो अगर मुझे अमाइन ग्रुप लास्ट वाले कार्बन पे चाहिए, टर्मिनल कार्बन पे चाहिए, तो आई विल स्टार्ट विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ NH2OH, आई विल गेट ऑक्साइम. ऑक्साइम आफ्टर रिडक्शन विल गिव अमाइन. लेकिन वही अगर मुझे अमाइन ग्रुप किसी बीच वाले कार्बन पे चाहिए, नॉन टर्मिनल पे, तो आई हैव टू स्टार्ट विथ कीटोन. कीटोन रिएक्ट विथ NH2OH, गिव ketoxide. After reduction give primary amine, but that amine group will be on non-terminal carbon. अरे करता है. और किससे बनेगा अमाइन? अमाइड से बनेगा. What is अमाइड? C double bond O NH2. किसी भी अमाइड से अमाइन 2 रास्ते. सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन चाहिए, रिडक्शन कर. एक कार्बन कम वाला चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर. एंड एक था नाइट्रो सेल अमाइन बनाना. नाइट्रो ग्रुप आफ्टर रिडक्शन डायरेक्टली गिव NH2, NO2 बिकम NH2. इसका जो एग्जांपल है ना, जनरली अपने बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बेंजीनमाइड के लिए पूछा जाता है. बेंजीन रिंग, ये जरा स्पेशल याद रखना. बेंजीनमाइड, इसका अगर मैंने रिडक्शन किया, बेंजीनमाइड आफ्टर रिडक्शन, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, रिडक्शन कर रहा हूं मतलब क्या है? सिर्फ 4 नेचर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं ना, तो 2 हाइड्रोजन O को लेके जाएंगे पानी में, 2 हाइड्रोजन इस C को बना देंगे, तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? बेंजीन रिंग CH2NH2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइल अमाइन. हम लोग ने बात की है बेंजीन और CH2 इज बेंजाइल ग्रुप, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज so your benzinamide after reduction give. लेकिन इसी बेंजीनामाइड का अगर मैंने हैप्पी बर्थडे कर डाला तो ये नहीं, ये CO चला जाएगा बेटा. NH2 डायरेक्टली रिंग को ज्वाइन करेगा. द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज एनिलीन. अरे बेंजीन को NH2 डायरेक्टली ज्वाइंट होगा ना, CO तो कल्टी मारेगा Na2CO3 में, एंड मिलने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एनिलीन. बेंजीन को NH2 डायरेक्टली ज्वाइंट होगा तो कंपाउंड इज एनिलीन. तो याद रखने का, बेंजीनामाइड. व्हाट इज बेंजीनामाइड? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O NH2 टू एनिलीन. एनिलीन मतलब वो NH2 डायरेक्ट रिंग को ज्वाइंट होना चाहिए, बीच का CO कल्टी मारना चाहिए. ये कब होगा? हैप्पी बर्थडे से. लेकिन बेंजीनामाइड टू बेंजाइल अमाइन, तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट CO इनटू CH2. And that will happen just by doing reduction. So these all are preparation of amine. ये सारे अमाइन के प्रिपरेशन है.
हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का भी रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में ना बच्चों मुझे पता है सॉल्यूशन है बार 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 वही चीज रिवाइज करके, वो चार्ट अपने दिमाग में ना बैठना ही चाहिए कि कौन से कंपाउंड का क्या करेगा तो क्या मिलेगा, बार बार बोल के रिवाइज करने का, तो ऑर्गेनिक में होने वाला कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, गारंटीड नहीं है। देखो ना मेरे अमाइन के प्रिपरेशन, हालांकि ये सारे रिएक्शन अपने को दो दो एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग वो ऑलरेडी कर चुके हैं, रिएक्शन हम कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ चार्ट के माध्यम से याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से रिएक्शन कब रियलाइज हो कि कौन सा पूछा है। क्या क्या याद रखोगे? अल्काइल हैलाइड से अमाइन कितने रास्ते? 3। अल्डिहाइड कीटोन से अमाइन रास्ता एक ही है, बट अल्डिहाइड से मिलने वाले अमाइन में NH2 लास्ट में रहेगा, कीटोन से वाले मिलने वाले अमाइन में NH2 नॉन टर्मिनल पे रहेगा। तीसरा रास्ता बाय अमाइड, अमाइड से अमाइन बनेगा, रिडक्शन से सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला, हैप्पी बर्थडे से एक कार्बन कम वाला। नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से भी अमाइन मिलेगा, बट नाइट्रो के रिडक्शन के लिए अपना रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए? SN प्लस HCl। लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों अमाइन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें बेसिकली मेरे हिसाब से देयर आर सो मेनी रिएक्शन, बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज इंपॉर्टेंट, बट आज के सेशन में हम लोग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ना 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अमाइन में, 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और इन रिएक्शन के जरिए हम ये पता कर सकते हैं, उसमें से जो पहले 3 रिएक्शन में शेयर कर रहा हूं, ऑल दीज 3 रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई whether the amine is primary, secondary और tertiary। ये 3 रिएक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि वो अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। से फॉर एग्जांपल पहला रिएक्शन है बच्चों नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड याद है क्या रे? व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO2। लेकिन हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है ये नाइट्रस एसिड फ्री स्टेट में अवेलेबल, तो इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे नाइट्रस एसिड को? बाय यूजिंग NaNO2, दैट इज NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl यूज करोगे तो अपने को मिलेगा ये HNO2, और ये NaCl नीचे बैठ जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। मतलब पहले तो HNO2 वाले रिएक्शन में एक अलग टेस्ट ट्यूब में मुझे NaNO2 में HCl डालना होगा, वो NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करके बनेगा HNO2, और वहां नीचे बैठ जाएगा कौन? NaCl, और ये नया बनाया HNO2 फिर हम रिएक्शन में यूज करेंगे। नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन में एवरी टाइम हमें एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा कि वो नाइट्रस एसिड मुझे कहां से मिला। तो कहां से मिला मुझे नाइट्रस एसिड? NaNO2 प्लस HCl। कंसेप्ट ऐसा इसका कि अगर आप प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करते हो, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करोगे ना, तो इट ऑलवेज गिव दारू, इट गिव्स अल्कोहल विथ बुडबुडे ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल विथ बुडबुडे ऑफ नाइट्रोजन गैस। सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन करोगे ना, तो इट गिव्स यू अ कंपाउंड कॉल्ड एज नाइट्रोसोअमाइन। ये ना कंपाउंड देता है जिसका नाम है नाइट्रोसोअमाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिबरमन्स नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। ये ना येलो कलर्ड का ऑयली सब्सटेंस है, और टर्शरी अमाइन सॉल्ट बन के डिजोल्व हो जाता है। मैं फटाफट एक एक रिकैप लेता हूं। देखो, इफ आई डू द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप है ताई NH2। NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन। इसका रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं विथ नाइट्रस एसिड। व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO2। मैं क्या बोलता है वही HNO2 को ऐसा लिखू क्या रे? OH N डबल O। हाँ कौन है? तोच से HNO2 है कौन? ये HNO2 नाइट्रस एसिड। एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, किसने दिया? NaNO2 प्लस HCl। वार्मिंग क्या रिएक्शन होगा ताई? मान लो ये 2 हाइड्रोजन
इसो को पानी में लेके जाएंगे, ये दो हाइड्रोजन इसो को किधर लेके गए, पानी में लेके गए। ये दो एन आपस में कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, N2, एंड यू विल गेट अ बुडबुडे ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको नाइट्रोजन गैस का बुडबुडा मिलेगा, नाइट्रोजन N2 चला गया, ये H2O में गया, तो डेफिनेटली इस NH2 की जगह पे अब कौन आएगा, OH, एंड यू विल गेट अ कंपाउंड R which is nothing but alcohol. That's what I told you. Primary amine react with nitrous acid to give alcohol with बुडबुडे of नाइट्रोजन गैस। लेकिन वही अगर मैंने सेकेंडरी अमाइन लिया, सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप इज NH, N के दोनों साइड R होता है ना, तो सेकेंडरी अमाइन इज R NH R डैश। इसका रिएक्शन अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ करता हूं, क्या रिएक्शन होगा रे, ये OH और H पानी में जाएगा, एंड दिस N विल डायरेक्टली फॉर्म अ बॉन्ड विद N, ये NO ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा और मिलने वाला कंपाउंड हो जाएगा R N R डैश N डबल बॉन्ड O। सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोअमाइन। ये ना येलो कलर्ड का ऑयली सब्सटेंस है जिसका ना बहुत ही अच्छा गंदा स्मेल है। आई एम यूजिंग द वर्ड अच्छा गंदा स्मेल है, मतलब अच्छा खासा गंदा स्मेल है। वो गंदा स्मेल लेने के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर गंदा स्मेल है। और अगर हम टर्शरी अमाइन लेते हैं तो टर्शरी अमाइन बच्चों डिसॉल्व हो जाता है, वो नाइट्रस एसिड में क्या हो जाता है, मतलब वो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बन के डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, मतलब कोई कलर चेंज। मतलब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन तीनों नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे, इसलिए दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब ऐसा मान के चलो ना, मेरे टेस्ट ट्यूब में एक अमाइन दिया है, मुझे मालूम नहीं है कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, कैसे पता करेगा कि अमाइन कौन सा है। मैं एक अलग टेस्ट ट्यूब में नाइट्रस एसिड लूंगा, बनाऊंगा बाय यूजिंग NaNO2 और NaCl नीचे बैठ जाएगा, और वो जो HNO2 है नया बनाया HNO2 अब मैं इस अमाइन में डालेगा। अगर मुझे बुड़बुड़े आते दिखाई दिए तो जैसे ही बुड़बुड़े खत्म होंगे मैं उधर ही फरसट लेके बैठ जाऊंगा, और क्योंकि कंटेनर में बचेगा क्या, अल्कोहल प्लस, और पैक भी रेडी मिलेगा, पानी दारू में पानी मिक्स मिलेगा, तो अपने को क्या लगेगा फिर, फरसान। आर यू गेटिंग इट और नॉट? प्राइमरी अमाइन गिव्स व्हाट, अल्कोहल प्लस वाटर प्लस बुडबुडे ऑफ, एक्चुअली यू विल फाइंड एफरवेसेंस, वो नाइट्रोजन गैस की एफरवेसेंस है। तो दैट्स अ कंक्लूजन कि गिवन अमाइन इज प्राइमरी। लेकिन अगर मैंने उसमें नाइट्रस एसिड डाला, मुझे मालूम नहीं है ये अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, और अगर मैंने उसमें नया बनाया नाइट्रस एसिड डाला, और अगर मैंने बाजू वाले के पास देखा, अभी गया नहीं क्या सुबह से तू, प्रॉब्लम उसका नहीं है, गंदा स्मेल इधर से आ रहा है, इधर येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस मिल रहा है, ये गंदा स्मेल दे रहा है, कंक्लूजन वो अमाइन सेकेंडरी है। और अगर वो डिसॉल्व हो गया, कोई कलर चेंज नहीं दिखा, कंक्लूजन वो अमाइन। इस तरीके से बच्चों हम ये पता कर सकते हैं कि वो अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। प्राइमरी अमाइन गिव्स अल्कोहल and you will observe the effervescence of nitrogen gas. Secondary amine will give you yellow colored oily substance with अच्छा खासा गंदा smell, that is nitrosoamine. It is actually a Lieberman nitrosoamine test. And tertiary amine में it will become salt and get dissolved in it, so you will not find any color change. अरे समझा? इस तरीके से nitrous acid test can be used to identify whether amine is प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो शॉर्टकट में लिखते हैं प्राइमरी अमाइन क्या देगा बोलो, अल्कोहल प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस के बुडबुडे। सेकेंडरी अमाइन क्या देगा, नाइट्रोसो अमाइन। एंड टर्शरी अमाइन में क्या होगा, इट विल बिकम सॉल्ट एंड डिसॉल्व्ड, सॉल्यूबल हो जाएगा। दिस इज हाउ प्राइम नाइट्रस एसिड टेस्ट कैन बी यूज्ड। तो ये टेस्ट का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है या पूरा डिटेल रिएक्शन भी आ सकता है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड। तो ये तीनों जनरल रिएक्शन लिख के आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है। सेकेंड रिएक्शन भी ये काम करेगा, रिएक्शन कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन से भी हम ये पता कर सकते हैं कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। बच्चों कई बार मैंने आपको पढ़ाया है एसिटाइलेशन रिएक्शन के लिए वी नीड एसिटाइलेटिंग एजेंट। टू डू द एसिटाइलेशन वी रिक्वायर एसिटाइलेटिंग एजेंट। देयर आर टू एसिटाइलेटिंग एजेंट अगर आपको याद है, वन इज एसिटाइल क्लोराइड, सेकंड इज एसिटिक अनहाइड्राइड। प्राइमरी अमाइन का अगर आप एसिटाइलेशन करोगे, इफ आई डू द एसिटाइलेशन ऑफ एनी प्राइमरी अमाइन, चलो अपना नॉर्मल एसिटाइल क्लोराइड यूज करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, क्या रिएक्शन होगा रे? वन ऑफ द H Cl के साथ HCl and that H will get replaced by acetyl group, so you will get a compound RNH, एक HCl के साथ गया है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे कैसे ऐसे घूम के आएगा, so you will get C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया उस अमाइन में, बट वन मोर टाइम आई कैन डू एसिटाइलेशन। मैं इसका ना और कंटिन्यू एसिटाइलेशन कर सकता हूं, क्यों? और एक हाइड्रोजन है उधर रिप्लेस होने के लिए। So one more time, if I do one more time acetylation, CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, कंटिन्यू एसिटाइलेशन करते गए एक्सेस में एसिटाइल क्लोराइड डालते हुए, तो ये वाला HB Cl के साथ चला जाएगा और एक एसिटाइल ग्रुप इसमें आएगा, सो यू विल गेट RN C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे बोलना इतना ही था कि प्राइमरी अमाइन का एसिटाइलेशन करोगे, कितनी बार एसिटाइलेशन आप कर सकते हो? 2 बार। ट्वाइस एसिटाइलेशन पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस होने के लिए। लेकिन वही अगर मैं सेकेंडरी अमाइन के लिए करूंगा, सेकेंडरी अमाइन में कितने एसिटाइल ग्रुप H को रिप्लेस कर सकते हैं? एक ही once only acetylation is possible, only once acetylation is possible, because this H react with Cl to give HCl and ये एसिटाइल ग्रुप घूम के आ जाएगा, you will get R N R dash C डबल बॉन्ड O CH3 and यहीं पे आगे एसिटाइलेशन होने वाला, क्योंकि उधर अब रिप्लेस होने के लिए H नहीं। टर्शियरी अमाइन का एसिटाइलेशन नाइट से होता ही, क्योंकि उसके पास H नाइट से H है ही नहीं, इसलिए इसका एसिटाइलेशन नो रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ कैसे पता करेंगे नहीं वो अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? मुझे एक अमाइन दिया है, मुझे मालूम नहीं है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी। एसिटाइलेशन रिएक्शन से भी हम ये पता कर सकते हैं। I'll just add एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइलेटिंग एजेंट, पूरा एक्सेस में एसिटाइल क्लोराइड डालूंगा। बच्चों बात को समझो, अगर एक एसिटाइल ग्रुप अमाइन को अटैच होता है तो उसका वजन कितने से बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ेगा? सी एसिटाइल ग्रुप अटैच करना मतलब 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एंट्री मार रहे हैं उस अमाइन के अंदर। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, 2 कार्बन मिला के 24, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, 3 हाइड्रोजन है 24 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, वो ऐड करोगे तो इसका टोटल एसिटाइल ग्रुप का वजन हो जाएगा 43। मतलब एक एसिटाइल ग्रुप आता है तो वजन कितने से बढ़ेगा? 42 से बढ़ेगा, क्योंकि जब वो एसिटाइल आएगा तब ओरिजिनली अमाइन का 1 हाइड्रोजन कम भी होगा ना, 1 हाइड्रोजन जाके 43 आ रहा है, मतलब एक्चुअली वजन इज गेटिंग इंक्रीज बाय 42। सो जब एक एसिटाइल ग्रुप आता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट गेट इंक्रीज बाय 42। प्राइमरी अमाइन में एक्सेस में डालोगे एसिटाइल क्लोराइड तो कितने एसिटाइल ग्रुप आएंगे? तो एक्चुअली टोटल मॉलिक्यूलर वेट गेट इंक्रीज बाय 84। सो अगर मैंने शुरुआत का अमाइन लिया, उसका वजन करके रखा भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है, पर मोल पर मॉलिक्यूल वजन क्या आता है, और फिर मैंने इसका कंप्लीट एसिटाइलेशन किया,
फिर प्रोडक्ट का वजन चेक किया, अगर प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट 84 से बड़ा दिखाई दिया तो कंक्लूजन इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप 2 आए मतलब मेरा ओरिजिनल ग्रुप NH2 था, तभी तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, तभी तो वो कंक्लूजन वो अमाइन प्राइमरी था। लेकिन एंड तक रिएक्शन करने के बाद अगर इसका वजन मुझे सिर्फ 42 से बड़ा हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप सिर्फ एक ही आया, और एक ही आया इसका मतलब ओरिजिनल में भी ग्रुप NH था, तभी तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, मतलब वो अमाइन सेकेंडरी था। और अगर वजन बढ़ा ही नहीं इसका मतलब एसिटाइलेशन हुआ ही नहीं, कंक्लूजन वो अमाइन। सो वजन में आने वाले डिफरेंस से हम ये पता कर सकते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन के जरिए कि वेदर दैट अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और, तो ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन। लेकिन इसमें एक बात याद रखो, अगर इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एनिलीन में स्पेशल केस होता है। क्या स्पेशल केस होता है एनिलीन में, आई जस्ट डिस्कस लेटर ऑन, पहले अपन अपना तीनों रिएक्शन कवर कर लेते हैं। एसिटाइलेशन में प्राइमरी अमाइन का एसिटाइलेशन करोगे, मॉलिक्यूलर वेट कितने से बड़ा दिखाई देगा, 84 से, क्यों, क्योंकि 2 एसिटाइल ग्रुप आ रहे। सेकेंडरी अमाइन में बोलो कितने से बड़ा दिखाई देगा, 42। टर्शरी में कितने से बड़ा दिखाई देगा, नो इंक्रीज, मॉलिक्यूलर वेट विल रिमेन सेम, क्योंकि रिएक्शन होने वाला ही नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमाइन का करोगे, बेंजीन, व्हाट इज बेंजीन, बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, ये रिएजेंट याद रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट। What is that Hinsberg reagent? Benzene sulfonyl chloride. What is that? Benzene sulfonyl chloride. What is that? Benzene ring S double bond O Cl. What is benzene sulfonyl chloride? Benzene S double bond O Cl. Compound is called as Hinsberg reagent, benzene sulfonyl chloride. इसका अगर प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये एक HCl के साथ HCl में, तो मिलने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलो RNHS। यस जॉइंट होगा ना बेटा, S डबल बॉन्ड O बेंजीन। और ये जो कंपाउंड है ना एसिडिक है, ये सल्फोनामाइड है, ये सल्फोनामाइड एसिडिक है क्योंकि इसके पास H है, ये अपना H रिलीज कर सकता है, H+ को रिलीज कर सकता है, मतलब इसमें एसिडिक भूमिका अदा करने की क्षमता है। यू कैन चेक आउट दिस बाय एडिंग बेस। इसमें बेस डालो, इट विल गिव यू सॉल्ट। इसमें कोई भी बेस डालो, KOH डालो, NaOH डालो, तो ये वाला H OH के साथ शादी करके पानी में जाएगा और H will get replaced by Na, you will get an ionic bond formation over there, so you will get a salt। तो ये एसिडिक है तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर मैंने सेकेंडरी अमाइन के लिए रिएक्शन किया, इफ आई डू द रिएक्शन फॉर सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या होगा, ये सेकेंडरी अमाइन का H Cl के साथ HCl में मिलने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, RNR' डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग। ये भी सल्फोनामाइड है, एनल्काइल सल्फोनामाइड, लेकिन इसके पास H, ये एसिडिक भूमिका अदा, ये बेस के साथ रिएक्ट, मतलब प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करके एक एसिडिक सल्फोनामाइड देगा, एसिडिक सल्फोनामाइड फर्दर रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट, वो सॉल्ट तक जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सल्फोनामाइड देगा जो एसिडिक नहीं होगा, इसलिए वो आगे बेस के साथ रिएक्ट, तो सेकेंड रिएक्शन देने वाला। और टर्शरी अमाइन ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास H नाइट्स है, सो हियर नो रिएक्शन, वो सल्फोनामाइड फॉर्मेशन ही देने वाला
नहीं है। मतलब देखो ना, अगर मेरे अमाइन ने सल्फोनामाइड दिया और आगे बेस के साथ भी रिएक्ट किया, कंक्लूजन ये अमाइन प्राइमरी है। अगर उसने सल्फोनामाइड दिया लेकिन बेस के साथ रिएक्शन नहीं दिया, कंक्लूजन ये सेकेंडरी है। और इसने सल्फोनामाइड ही नहीं दिया, कंक्लूजन ये टर्शरी। तो सल्फोनेशन, ये जो रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके साथ भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये तीन ना मेजर रिएक्शंस है टू आइडेंटिफाई कि वो अमाइन का प्रकार क्या है। नाइट्रस एसिड से कैसे पता चलेगा? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल विथ बुडबुडे ऑफ, तो ऑब्जर्वेशन में दिखाई क्या देगा टेस्ट ट्यूब में? एफरवेसेंस नाइट्रोजन गैस की। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रस एसिड डालूंगा तो गंदा स्मेल आएगा, येलो कलर्ड ऑयली सब्सटेंस, दैट इज नाइट्रोसो अमाइन। और टर्शरी अमाइन में कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, वो सॉल्ट बनेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कोई कलर चेंज दिखाई देने वाला नहीं है। तो नाइट्रस एसिड से हम पता कर सकते हैं। एसिटाइलेशन से कैसे पता करोगे कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? वजन में उसका एसिटाइलेशन करते जाओ, एक्सेस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड डाल के। अगर वजन मॉलिक्यूलर वेट में 84 का डिफरेंस दिखाई दिया, इसका मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड हुए हैं, कंक्लूजन दैट अमाइन इज प्राइमरी। वजन मॉलिक्यूलर वेट 42 का डिफरेंस दिखाई दिया, कंक्लूजन वो अमाइन सेकेंडरी है। और कोई डिफरेंस नहीं है, कंक्लूजन दैट अमाइन इज टर्शरी। हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राइमरी अमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगा तो सल्फोनामाइड देगा जो एसिडिक होगा, जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट देगा। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो वो सल्फोनामाइड देगा लेकिन वो एसिडिक, तो आगे बेस के साथ रिएक्शन। और टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ ही रिएक्शन, इससे अपन ये पता कर सकते हैं वो अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या। तो ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइन में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या। इसके अलावा एक रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, रिएक्शन कॉल्ड एज मांजर टेस्ट। याद है बात किया था इसके बारे में? इट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसको शॉर्टकट में कभी कभी हम एरो के ऊपर लिखते हैं तो इसका शॉर्टकट बनता है CAT, कैट। कैट माने मांजर, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, मांजर टेस्ट। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये जो टेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन नहीं देता, ये टेस्ट आपने HDA में भी पढ़ा था, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही इस रिएक्शन को देगा। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इस रिएक्शन को देने वाला मतलब कौन सा अमाइन देगा? जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। NH और N वाले इस रिएक्शन को देते ही, मतलब अगर मुझे पता करना है कि ये प्राइमरी है या नहीं है तो बेस्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगर आपको याद है इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, आइसोसाइनेट देता है। शाबाश। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH। क्या रिएक्शन होगा? These 3K react with 3Cl to give you 3KCl, 3 OH और 3 H। देखो ना, ये 2 H और ये 1 H। प्राइमरी अमाइन में 2 H है और क्लोरोफॉर्म का 1 H। कितने H है अपने पास? 3 H एंड 3 OH। 3 H 3 OH will give you 3 पानी, and this C will form a bond with N to give you R N triple bond C, called as alkyl isocyanide. Isocyanide itself is called as carbyl amine. Since it is giving you carbyl amine, the test is called as carbyl amine test. Isocyanide का भी अच्छा खासा गंदा स्मेल होता है, so it gives you carbyl amine, and ये carbyl amine test, it is a characteristic test of primary amine. प्राइमरी अमाइन के अलावा दूसरा कोई भी अमाइन इस टेस्ट को अंजाम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा भी रिएक्शंस है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अमाइंस बेसिक है, ये प्रूव करने के लिए इसमें एसिड डालो तो इट गिव्स यू सॉल्ट, सो ये प्रूव होता है कि अमाइन बेसिक है, लुईस बेस है, नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे अलग रिएक्शंस भी है, बट मेजर जो रिएक्शन करके जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रिवीजन हम लोग ने आज लिया। 4 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन से बोलो वापस?
nitrous acid, acetylation, Hinsberg reagent. These three can be used to identify whether amine is primary, secondary, tertiary, and carbyl amine test is a characteristic test of primary amine. It gives isocyanide. Preparation याद है? कौन से प्रिपरेशन थे? बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड. 3 रास्ते थे. डायरेक्ट अमोनिया डालोगे, रिएक्शन कॉल्ड एज हॉफमन अमोनोलिसिस. ऑलवेज गिव्स यू अ मिक्सचर ऑफ primary amine, secondary amine, tertiary amine, and quaternary ammonium salt. If ammonia used in excess, the dominant product is ammonia used in excess, dominant product is primary amine. If alkyl halide used in excess, dominant product is quaternary ammonium salt. In quaternary ammonium salt, all 3 types of bonds are present: covalent, coordinate, ionic. अल्काइल हैलाइड से अमाइन तक जाना है जिसमें एक कार्बन ज्यादा है. इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपाइल अमाइन, रास्ता इथाइल ब्रोमाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल साइनाइड. ऑन रिडक्शन गिव अमाइन हैविंग 1 कार्बन एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ साइनाइड. But ethyl bromide to ethyl amine, number of carbon same. Reaction is Gabriel Thalamide reaction. कौन से रिएक्शन रियलाइज होंगे आप? अगला रिएक्शन क्या था? बाय यूजिंग अमाइड. या उससे पहले अपन ने किया था बाय यूजिंग कार्बोनिल. इसमें क्या कंसेप्ट था? अगर मुझे NH2 लास्ट में चाहिए तो शुरुआत अल्डिहाइड से करनी है. अगर NH2 बीच में कहीं चाहिए तो शुरुआत कीटोन से करनी है. अल्डिहाइड में NH2H डाल, यू विल गेट अल्डोक्साइड. ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन वेयर NH2 इज अटैच्ड टू टर्मिनल एंड. लेकिन कीटोन में NH2H डाल, यू विल गेट कीटोक्साइम. ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमाइन बट NH2 ऑन नॉन टर्मिनल कार्बन. डिपेंड कि आपका कीटोन किधर है. अरे समझ रहा है? फिर एक रिएक्शन किया था बाय यूजिंग अमाइड. व्हाट इज अमाइड? सी डबल बॉन्ड ओ NH2. सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन चाहिए, उसका क्या करने का? रिडक्शन. तो सी डबल बॉन्ड ओ विल बिकम CH2. लेकिन एक कार्बन कम वाला अमाइन चाहिए, यू हैव टू डू हैप्पी बर्थडे हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. इट्स अ रिएक्शन विद Br2 प्लस 4NaOH. वो CO चला जाएगा, Na2CO3 में एक कार्बन कम वाला अमाइन मिलेगा. एंड एक रिएक्शन था डायरेक्टली रिडक्शन ऑफ नाइट्रो. लेकिन नाइट्रो के रिडक्शन के लिए अपने को SN प्लस HCl. दिस ऑल आर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ने 4 मेजर रिएक्शन फिलहाल रिवाइज किए. वन इज नाइट्रस एसिड, एसिटाइलेशन, हिंसबर्ग एंड कार्बाइल अमाइन टेस्ट विच गिव्स आइसोसाइनाइड. अदर पार्ट ऑफ अमाइन लाइक बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, इसके लिए अपन एक अलग वीडियो इसमें अपलोड करेंगे कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज अ सेपरेट क्वेश्चन. दे कैन आस्क यू द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइन. उसके लिए अपन एक सेपरेट सेशन जो मैं IUPAC के साथ ऐड करता हूं कि बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. उसमें दो इफेक्ट होते हैं. एक प्लस आई नेचर होता है अल्काइल ग्रुप का, प्लस स्टेरिक इंडरेंस. दोनों कंसेप्ट को एनालाइज करते हुए हम लोग बेसिक नेचर ऑफ अमाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन एक बात याद रखने का, अगर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है लाइक इन अ केस ऑफ एनिलीन, तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है. तो उसके वजह से वो लोन पेयर किसी दूसरे को देने के लिए उसके पास नहीं है, तो उसका बेसिक नेचर बहुत ही कम होता है इफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. तो उसके लिए अपन एक अलग वीडियो करेंगे. और एक सेपरेट वीडियो एनिलीन के रिएक्शंस के लिए किया जा सकता है कि एनिलीन के कौन से रिएक्शंस है. लेकिन यहां आज के इस सेशन में वी जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन. ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू ऑल to like, share and subscribe this video, as well as do not forget to like our Facebook page Reggae Dixit Science Academy. Thank you very much. Please write a comment, because if you demand any particular topic in organic chemistry or in any subject, so definitely we'll try to upload that video also. So I request you, all of you, to just mention in comment that which topic you are expecting from me and which topic you are expecting that video should be uploaded from Reggae Dixit Science Academy. Thank you very much for watching this video. Thank you.